So, today we will discuss cervical cancer. It is the most common gynecological cancer in the developing countries. Okay, earlier we had discussed the most common cancer in developed countries is endometrial carcinoma, and it is the overall most common gynecological cancer worldwide. Okay, this is the most common gynecological cancer in the developing countries, and it is the most common gynecological cancer worldwide. Before discussing the cancer, we should take a look on the cervix. Okay, the cervix is divided, as we all know, that cervix is divided into two parts, the ectocervix and the endocervix. Okay, cervix is divided into two parts, the ectocervix and the endocervix. जो एंडोसर्विक्स जो अंदर वाली सर्विक्स है दैट इज लाइंड बाय द columnar epithelium and the ectocervix is lined by the squamous epithelium. Okay, suppose this is the cervix. Okay, the junction of the columnar and the squamous cell is known as the squamocolumnar junction and the transformation zone. Okay, the junction of the squamous cell and the columnar epithelium is known as the squamocolumnar junction or the transformation zone. Suppose this is the transformation zone. What is the importance of this zone? Why we are discussing this? This is the dynamic part. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ कि this part is not static. This is the dynamic part. It can move inward and outward. Okay, there are some conditions like because of increasing age, it moves inside the endocervix. Okay, because of increasing age, it moves inside, and in the case of pregnancy and puberty, or if a female is taking OCPs, it moves outwards. So this is the dynamic part. This is not the static part. This is the importance of transformation zone. The transformation zone is most commonly affected by the HPV. What is HPV? Let me rub this first. Okay. What is HPV? HPV is human papilloma virus. Okay. The most common cause of cervical cancer is the human papilloma virus. And the most common part that is affected by the cervical cancer is the squamocolumnar junction. This is the most common site of dysplasia. Okay, transformation zone or the squamocolumnar junction is the most common site of dysplasia. There are two types of cell conversion, like this is metaplasia versus dysplasia. Anyone can differentiate between metaplasia and dysplasia? Basically metaplasia क्या होता है? Metaplasia is the normal change. The cells that are converted, they are normal cells and there is no nuclear atypia and they do not transform into malignant cell. Okay, like in pregnancy and like in puberty, or if a patient is taking OCPs, the transformation zone moves inward or outward. Okay,
इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वामस सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल्यूमनार सेल और द कोल्यूमनार सेल gets converted into a squamous cell. But this type of change is the physiological change. Okay, this is the metaplasia. This is not dysplasia. This is metaplasia. Metaplasia is the metaplasia is the physiological change. Okay, and what is dysplasia? Dysplasia are abnormal cell. It is not a cancer cell, but it may convert into the cancerous one. Okay, so metaplasia is a physiological change and dysplasia is a abnormal cells and they can convert into the neoplasia or cancerous one. Okay, let me rub this first. So what we had discussed, अभी सबसे पहले हमने क्या देखा कि cervical cancer is the most common gynecological cancer in the developing countries. Developed countries में हमने last lecture में देखा था that is the endometrial cancer and it is the overall most common gynecological cancer worldwide. सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, सबको पता है, एक्टोसर्विक्स एंड द एंडोसर्विक्स. द एंडोसर्विक्स इज लाइंड बाय which cell? It is lined by the columnar and ectocervix is lined by the squamous one. And the junction of the squamocolumnar cell is known as the transformation zone. हमने क्या डिस्कस किया अभी कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो डायनामिक जोन है. दिस इज नॉट द स्टैटिक पार्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि squamous can be converted into the columnar cell and columnar get converted into the squamous one because of the metaplastic change if the changes are physiological. अगर क्या हुआ because of the if the transformation zone is affected by the HPV, metaplasia can convert it into the dysplastic cells or neoplasia. Okay, मैंने आपको बता दिया मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में क्या डिफरेंस होता है. मेटाप्लेजिया इज ए फिजियोलॉजिकल चेंज. हियर द सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल सेल्स एंड दे डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द मैलिग्नेंट वन. हमने क्या देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो अगर एज बढ़ता है तो इट मूव्स इनसाइड द एंडोसर्विक्स और ये आउटवर्ड कब मूव करता है? इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, in the case of puberty and in female taking OCPs. Now we will discuss the causes of cervical cancer. Causes क्या हैं इसके? Basically human papilloma virus. Most common cause is the human papilloma virus. Human papilloma virus में भी 16 वाला, this is the most common cause. And they attack on the ectocervix and cause squamous cell carcinoma. Okay, and most specific वाला कौन सा है? That is the HPV 18 that causes the adenocarcinoma. Okay, तो cause कौन क्या हुआ इसका? Human papilloma virus, that is the most common cause and that attacked on the ectocervix and cause squamous cell carcinoma. And HPV 18 is the most specific cause and it causes adenocarcinoma. Okay, now what are the risk factors of cervical cancer? It is early intercourse and early childbirth. Okay, early intercourse and early childbirth because of the infection of the HPV. High parity. Yeah. किसी का माइक ऑन है? Multiparity is the risk factor for cervical cancer. Multiple sexual partners. Why? Because there is increased chance to expose to human papilloma virus. And if there is presence of sexually transmitted diseases or if a person is immunocompromised, like if a person is suffering from HIV, then
there is a high chance of getting involved in the cervical cancer. Okay, low socioeconomic status and poor hygiene. You should know this, that smoking is the risk factor for this cancer. हमने पीछे देखा था कि एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर में स्मोकिंग एंड ओसीपीज आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर. For the endometrial cancer and ovarian cancer, smoking and OCPs are the protective factor. But in the case of cervical cancer, smoking and OCPs are the risk factor, and OCPs increases the risk of adenocarcinoma. Okay, and the risk factor is the immunocompromised like HIV. तो रिस्क फैक्टर में क्या हुआ? अर्ली इंटरकॉर्स एंड अर्ली चाइल्ड बर्थ, मल्टी पैरिटी, नॉट नली पैरिटी. रिस्क फैक्टर है मल्टी पैरिटी and multiple sexual partners and concomitant STDs like sexually transmitted diseases, low socioeconomic status and poor hygiene, smoking and OCPs. Now, what are the histological types of cervical cancer? Basically, there are two types of cervical cancer, squamous cell cancer and the adenocarcinoma. Squamous cell cancer is also known as the epidermoid carcinoma, and this is the most common. हिस्टोलॉजिकल टाइप्स क्या है? बेसिकली इसके दो टाइप के होते हैं ब्रॉड वे में. फिर जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, ये फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड है. लार्ज सेल केराटिनाइजिंग, लार्ज सेल नॉन केराटिनाइजिंग, स्मॉल सेल कैंसर. स्मॉल सेल कैंसर की वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, एंड कार्सिनोमा वेरुका. तो दे आर द 4 पार्ट्स ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. Then we have the adenocarcinoma, which arises from the endocervix. So squamous adenocarcinoma arises from the endocervix or basically affected with the HPV 18, and it mostly occur in the younger woman and associated with OCP's use. Okay, if a female is taking OCPs, तो उसको एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो हमने क्या डिस्कस किया? बेसिकली टू ब्रॉड हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर. फर्स्ट इज द स्क्वामस सेल कैंसर, also known as the epidermoid carcinoma, and it is the most common type of histological cancer. Second one is the इसके 4 टाइप्स से पहले स्क्वामस सेल के लार्ज सेल केराटिनाइजिंग, लार्ज सेल नॉन केराटिनाइजिंग, स्मॉल सेल कैंसर जिसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, एंड कार्सिनोमा वेरुका. सेकेंड होता है एडिनोकार्सिनोमा. ये कहाँ पे होता है? फ्रॉम द एंडोसर्विक्स. और ये किससे होता है? HPV 18 वाले से. मोस्टली यंगर वुमन इसमें अफेक्टेड होती हैं, और OCP यूज वाले जो होते हैं वो ज्यादा मतलब इससे अफेक्ट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. इसमें जो इंसिडेंस होता है, वो एज जो होता है, दैट इज बाइमोडल पीक ऑफ इंसिडेंस. क्या मतलब हुआ इसका? यंगर एज में भी हो सकता है ये, और ओल्डर एज में भी हो सकता है. तो 35 से 45 इयर्स की फीमेल एंड 50 से 60 इयर्स की फीमेल में ये कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है. द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज द irregular vaginal bleeding. Most common one is the irregular vaginal bleeding, and most specific one is the postcoital bleeding, which is also known as the contact bleeding, and this is the earliest symptom. तो earliest symptom क्या हुआ? Postcoital bleeding or the contact bleeding, and it is the most specific. इसका मतलब क्या हुआ? It is found in carcinoma cervix only. And next symptom is the dirty vaginal discharge. Okay, तो clinical presentation में age क्या होता है? It had the bimodal peak of incidence. तो 35 से 45 इयर्स की फीमेल और 50 से 60 इयर्स की फीमेल इसमें ज्यादा अफेक्ट हो सकती हैं. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज द इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग. मोस्ट स्पेसिफिक इज द पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग और द contact bleeding, and contact bleeding or the post coital bleeding is the
अर्लीस्ट सिम्टम। इसके अलावा है डर्टी वेजाइनल डिस्चार्ज। अब साइन क्या हो सकते हैं? सर्विक्स इज हार्डनेस, friability and bleeds on touch. They are basically the cardinal sign of carcinoma cervix. Next we have the physical findings. Physical findings में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पर speculum examination करेंगे. If we see the growth on cervix, then we will do the punch biopsy and histopathological examination. Okay? If growth on cervix is not visualized, तो हम कॉल्पोस्कोपी के थ्रू बायोप्सी करेंगे और देन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो फिजिकल फाइंडिंग्स में फर्स्ट स्पेकुलम में हमें क्या मिल सकता है? इफ देयर इज ग्रोथ ऑन सर्विक्स देन punch biopsy can be done and histopathological examination. If growth on cervix is not visible, then colposcopic biopsy can be done and then histopathological examination. There are few tests, screening tests for the carcinoma cervix. First one is the visual inspection with Lugol iodine. इसको हम क्या बोलते हैं? This is known VILI, visual inspection with Lugol's iodine. This is also known as the Schiller's test. Okay, also known as the Schiller's test. इसमें हम क्या करते हैं? We apply Lugol's iodine on cervix. Okay, if the cells are normal, they get converted into brown color. They get stained brown because of the presence of the glycogen. Okay, they get stained brown because of the presence of the glycogen. If malignant cells are present, there is no brown color. नबीला, 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 थोड़ा सा स्लो बोल लो प्लीज. If malignant cells are present, no brown color because glycogen is consumed by neoplastic cells. ओके, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है? विजुअल इंस्पेक्शन विद Lugol आयोडीन विच इज ऑल्सो नोन एज द शिलर्स टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं? Lugol's आयोडीन को सर्विक्स पे अप्लाई करते हैं और फिर कलर चेंज देखते हैं. अगर ब्राउन कलर हो गया, दैट इज द नॉर्मल सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोजन. अगर मेलिग्नेंट सेल प्रेजेंट है तो वहां पे कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो न्यूप्लास्टिक सेल उसको कंज्यूम कर चुके हैं. तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट. लेट मी रब दिस. The next is the visual inspection with acetic acid. It is also known as the VIA. Abnormal area will become white if acetic acid is applied over the cervix. Then abnormal area will become white. क्यों होता है? Because of coagulation of the malignant protein. तो white वाले area को क्या बोलते हैं? Aceto-white area. So they are the screening test for the carcinoma cervix. First one is the villi and second one is the VIA. Villi is also known as the Schiller's test. Okay. Next, the diagnostic test for the carcinoma cervix. This is the best diagnostic test. This is known is the Pap smear. Pap smear क्या है? This is the best diagnostic test for carcinoma cervix. इसमें हम फिक्सेटिव क्या यूज करते हैं? पहले हम यूज करते थे 95% इथाइल एल्कोहल, लेकिन आजकल क्या यूज किया जाता है? फिक्सेटिव लिक्विड मिथेनॉल. Nowadays liquid methanol is used as a fixative.
इट इज द, और कौन सी ब्रश कौन सा यूज करते हैं, साइटो ब्रश यूज करते हैं। अगर किसी पर्सन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसमें पैप स्मेयर स्टार्ट कर देंगे। ओके, स्टार्ट कब करना होता है, 21 ईयर्स पे स्टार्ट करना होता है, और करना होता है वंस इन 3 ईयर अप टू 65 ईयर। ओके, और अगर एचपीवी डीएनए का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, सॉरी, वंस इन 3 ईयर अप टू 65 ईयर। नेक्स्ट वी कैन डू द को टेस्ट में क्या कर सकते हैं, पैप स्मेयर के साथ साथ एचपीवी डीएनए भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम एचपीवी डीएनए भी कर रहे हैं टेस्ट, तो फिर हम टेस्ट करेंगे एवरी 5 ईयर में एक बार। ओके, अगर इफ लास्ट 10 years is has normal report, then we can stop at 65 years. ओके, तो अगर किसी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो 21 ईयर से पैप स्मेयर स्टार्ट कर देना है, अप टू 65 ईयर्स तक करते रहना है हर 3 साल पे। इसके अलावा को टेस्ट होता है पैप स्मेयर के साथ साथ एचपीवी डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, और ये टेस्ट करना है एट एवरी 5 ईयर। ओके, अगर लास्ट 10 years की रिपोर्ट नॉर्मल आई है देन वी कैन स्टॉप एट 65 ईयर्स, और अगर रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो स्टॉप करना होता है एट 75 ईयर्स। ओके, इफ अ पेशेंट इज HIV पॉजिटिव देन वी विल डू द एनुअल स्क्रीनिंग। एवरी ईयर टेस्ट करना होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पैप स्मेयर रिपोर्ट। लेट मी रब दिस फर्स्ट। Okay. Next, we will discuss the pap smear report. If the pap smear report is normal, then we can हम reassure कर सकते हैं, और screening protocol जो है हमारा उसको हम continue कर सकते हैं। If it is unsatisfactory or infection is present, then we will treat the infection and repeat the pap smear after 2 to 4 months. Okay. If there is presence of atypical squamous cell of undermined significance, this is known as एस्कस। एस्कस एस्कस is atypical squamous cell of undermined significance. Okay, then we will repeat after 6 months. Okay, और अगर फीमेल मोर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स की है तो एचपीवी डीएनए भी टेस्ट करेंगे। अब ये दोनों करने के बाद क्या हुआ, 6 मंथ की रिपीट करने के बाद भी फिर से क्या हुआ कि एटिपिकल सेल्स हमें दिख रहे हैं या फिर एचपीवी डीएनए पॉजिटिव है, तो फिर कॉल्पोस्कोपी करेंगे। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, LSIL एंड HSIL, इसका मतलब क्या हुआ, लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल एंड हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो पैप स्मेयर रिपोर्ट में क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल आ सकता है, अगर नॉर्मल आया तो सिर्फ रीएश्योर करना है, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है या इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ट्रीट करना है पेशेंट को एंड रिपीट आफ्टर 2 to 4 months। पैप स्मेयर को रिपीट करेंगे 2 से 4 महीने के बाद। अगर एटिपिकल स्क्वामस सेल प्रेजेंट है जिसके हम प्रॉपर्ली सिग्निफाई नहीं कर पा रहे कि वो लो स्क्वामस है हाई स्क्वामस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे आफ्टर 1 month, सॉरी आफ्टर 6 मंथ। और अगर फीमेल 30 ईयर से ज्यादा की है तो एचपीवी डीएनए की भी टेस्ट करेंगे। अगर 6 मंथ रिपीट करने के बाद भी एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट है तो कॉल्पोस्कोपी करना है। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया या हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया आ रहा है तो दोनों में हमें कॉल्पोस्कोपी करना है पैप स्मेयर के बाद। ओके, तो ये हमारी पैप स्मेयर रिपोर्ट है। हमने अभी डिस्कस क्या किया है, हमने देखा है इसमें
स्क्रीनिंग टेस्ट में दो चीजें हैं, विजुअल इंस्पेक्शन विद लुगोस आयोडीन विच इज ऑल्सो नोन एज द शिलर्स टेस्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, आयोडीन अप्लाई करना है, अगर ब्राउन कलर का हो गया तो नॉर्मल है, अगर ब्राउन कलर का नहीं हुआ तो मैलिग्नेंट है, सिंपल। सेकंड है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल एरिया जो है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोगुलेशन ऑफ मैलिग्नेंट प्रोटीन। नेक्स्ट हमने देखा पैप स्मेयर। पैप स्मेयर जो है दिस इज द बेस्ट टेस्ट, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट टेस्ट। इसमें जो फिक्सेटिव यूज करते हैं नाउ डेज, दिस इज द लिक्विड मेथनॉल। ओके, और ब्रश जो यूज करते हैं दैट इज द साइटो ब्रश। तो स्टार्ट अगर किसी में कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है किसी फीमेल में, तो हमें 21 ईयर से स्टार्ट कर देना है और रिपीट करते रहना है वंस इन 3 ईयर्स अप टू 65 ईयर्स। और अगर हम को टेस्ट कर रहे हैं मतलब पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो हर 5 साल पे इसको रिपीट करना है। अगर लास्ट 10 ईयर्स की रिपोर्ट नॉर्मल है तो 65 ईयर्स पे स्टॉप कर दो, लेकिन थोड़ा बहुत एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट थी लास्ट 10 ईयर की रिपोर्ट में, तो हम 75 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कोई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो हमें हर साल एनुअल स्क्रीनिंग करनी है। और पैप स्मीयर रिपोर्ट में हमारे पास 5 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो नॉर्मल रिपोर्ट आएगी तो सिंपल रीअश्योर कर देंगे, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री या कोई इन्फेक्शन हमें दिखा तो हम इसको ट्रीट करेंगे और रिपीट करेंगे पैप स्मीयर को आफ्टर 2 to 4 months। ओके, अगर ए टिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस या एस्कस आ रहा है तो फिर हमें रिपीट करना है 6 मंथ के बाद। और अगर फीमेल 30 साल से ज्यादा की है तो एचपीवी डीएनए भी करवाएंगे। ओके, फिर इसके अलावा क्या आ सकता है, फोर्थ वन इज द लो स्क्वामस सेल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया एंड हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। सॉरी, दिस इज नॉट नियोप्लेजिया, दिस इज लीजन, दिस इज लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन एंड दिस इज हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन। अगर ये प्रेजेंट है तो हमें कॉल्पोस्कोपी करना है। अब हम देखेंगे रूट ऑफ स्प्रेड। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इज द लिम्फेटिक वन एंड नेक्स्ट इज द हिमेटोजेनस वन। इसके अलावा डायरेक्ट रूट ऑफ स्प्रेड भी हो सकता है टू एडजेसेंट ऑर्गन लाइक वेजाइना। ओके, तो रूट ऑफ स्प्रेड मोस्ट कॉमन वन इज द लिम्फेटिक्स एंड सेकेंड इज द हिमेटोजेनस। और डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकता है टू एडजेसेंट ऑर्गन्स। मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व है दैट इज द लंग्स। एंड लंग्स में किसके थ्रू स्प्रेड करता है, हिमेटोजेनस स्प्रेड। स्प्रेड टू ओवरीज इज एक्सट्रीमली रेयर। ओके, सर्वाइकल कैंसर ओवरीज में स्प्रेड बहुत कम करता है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट वन इज द पायोमेट्रा, फिस्टुला बन सकता है, वेजाइको वेजाइनल वाला। इसके अलावा यूरीमिया हो सकता है और किडनी अफेक्ट हो सकती है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस और पायोनेफ्रोसिस हो सकती है, और लास्ट में डेथ हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है सर्वाइकल कैंसर में दैट इज यूरेमिया और रीनल फेल्योर। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, फर्स्ट वन इज द पायोमेट्रा, सेकेंड वन इज द फिस्टुला, third one is the uremia and fourth one is the hydronephrosis and pyonephrosis and last में death हो सकती है and most common cause of death in cervical cancer is the renal failure. Okay, next we will discuss the staging. इसमें आपने देखो इसकी staging करिए, फिगो प्राइमरी क्लिनिकल स्टेजिंग होती है, इसमें सर्जिकल स्टेजिंग नहीं होती। जो हमने एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर देखा था उसमें सर्जिकल स्टेजिंग होती है, सॉरी हाँ उसमें सर्जिकल स्टेजिंग होती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर में क्लिनिकल स्टेजिंग करते हैं एंड इट रिक्वायर्स सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या क्या करेंगे,
फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे लाइक चेस्ट एक्सरे, और इसके अलावा प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर कौन कौन सा करेंगे? बायोप्सी करेंगे, इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी, और एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज भी कर सकते हैं। तो इन सब की बेसिस पे स्टेजिंग हम करेंगे। ओके, तो स्टेज 1 इज अप टू द सर्विक्स ओनली। स्टेज 1 इज अप टू द सर्विक्स ओनली। फिर स्टेज 1B दो में डिवाइड है, 1A एंड 1B। 1A में क्या है? नो विजिबल ग्रोथ, एंड 1B में है विजिबल ग्रोथ ऑन सर्विक्स। अगर इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर फर्स्ट ए प्रेजेंट है, दैट इज नो विजिबल ग्रोथ, और पेशेंट रिक्वायर्ड प्रेगनेंसी, देन ओनली वी कैन डू इज द कोनाइजेशन। कोनाइजेशन क्या होता है? कोन जैसे पार्ट को सर्विक्स में से रिमूव करते हैं, दिस इज द कोनाइजेशन। कोन लाइक पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द सर्विक्स। ओके, फिर हम देखेंगे सेकेंड ए स्टेजिंग। सेकेंड ए स्टेजिंग में कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है? अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। फिर सेकेंड ए में भी होता है सेकेंड A1 एंड सेकेंड A2। अगर साइज ऑफ ग्रोथ लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो दैट इज द सेकेंड A1, एंड सेकेंड A2 इफ साइज ऑफ ग्रोथ इज मोर देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा होता है सेकेंड बी में, सेकेंड ए में होता है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरामेट्रियम। सेकेंड बी में है पैरामेट्रियम इज इन्वॉल्व्ड। अगर फर्स्ट बी प्रेजेंट है और सेकेंड ए प्रेजेंट है तो हिस्टेरेक्टमी कर देंगे विद लिम्फ नोड डाइसेक्शन। थर्ड में क्या है? अभी हमने देखा कि सेकेंड में अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इन्वॉल्व्ड है, थर्ड में लोअर, थर्ड का फिर ए होता है, ए में क्या है? लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना इज इन्वॉल्व्ड। थर्ड बी में है अप टू लेटरल पेल्विक वॉल एंड इट कैन कॉज द हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है? स्टेज थर्ड के बी पार्ट में। एंड सी में है पेल्विक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व्ड। फिर फोर्थ में है ब्लैडर एंड रेक्टम आर इन्वॉल्व्ड, एंड फोर्थ बी में है डिस्टेंट मेटास्टेसिस अप टू द लंग्स। ओके, उसके बाद इन दोनों में क्या करना होता है? थर्ड एंड फोर्थ में ट्रीटमेंट इज कीमो रेडिएशन। ओके, इसमें एक्सरेज का यूज करेंगे, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि दे आर दिस ऑल सर्वाइकल कैंसर इज रेडियो सेंसिटिव। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अभी हमने देखा स्टेजिंग। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टेजिंग इज क्लिनिकल, स्टेजिंग इज नॉट सर्जिकल। और क्लिनिकल स्टेजिंग किस कैसे करेंगे? हम इन्वेस्टिगेशंस करवा के देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में बायोप्सी करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी करेंगे और क्यूरेटाज करेंगे। फिर इन सब की बेसिस पे हम एक स्टेजिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 होता है, सिर्फ अप टू द सर्विक्स है। फिर स्टेज 1 के भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ए दैट देयर इज नो विजिबल ग्रोथ ऑफ द सर्विक्स, एंड फर्स्ट बी में विजिबल ग्रोथ ऑन द सर्विक्स। फर्स्ट ए में क्या है? अगर पेशेंट रिक्वायर्ड प्रेगनेंसी, देन हम इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोनाइजेशन ऑफ द सर्विक्स ओनली। ओके, फिर सेकेंड ए में क्या है? अब सर्विक्स से थोड़ा सा नीचे वेजाइना की तरफ आया, तो अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना इज इन्वॉल्व्ड। फिर इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, A1 एंड A2। A2 में क्या है? हम A2 में इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द ग्रोथ। अगर साइज ऑफ द ग्रोथ लेस देन 4 सेंटीमीटर है या मोर देन 4 सेंटीमीटर है। लेकिन सेकेंड ए में पैरामेट्रियम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेकेंड बी में है पैरामेट्रियम का इन्वॉल्वमेंट। फिर थर्ड पे आएंगे। अब अपर 2/3 से क्या हुआ?
लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ओके, तो थर्ड ए में ओनली लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना इज इन्वॉल्व। थर्ड बी में क्या है, अप टू द लेटरल पेल्विक वॉल एंड कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस। एंड थर्ड सी में पेल्विक एंड पैराएयोटिक लिम्फ नोड्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। उसके बाद है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में फोर्थ ए है ब्लैडर एंड रेक्टम इज इन्वॉल्व्ड, एंड फोर्थ बी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस अप टू द लंग्स। तो थर्ड और फोर्थ का ट्रीटमेंट है कीमो रेडिएशन, इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। कुछ प्रिवेंशन के लिए एचपीवी का इन्फेक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीन होती हैं। तो इसमें बस नाम याद रखना है हमें कि गार्डासिल इज द क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो 6, 11, 16, 18 स्ट्रेन के खिलाफ होती है, अगेंस्ट द 6, 11, 16 एंड 18। इसके अलावा सर्वेरिक्स वैक्सीन है दैट इज बाइवेलेंट एंड दिस इज अगेंस्ट 6 एंड 11। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और आइडियल एजेस 11 टू 12 ईयर्स पे। अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो एवरेज एज होती है वो 9 ईयर से लेके 26 ईयर्स तक दे सकते हैं इसको। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी। टू प्रिवेंट द एचपीवी इन्फेक्शन, एचपीवी वैक्सीन कैन बी गिवन। तो ये दो टाइप्स के हैं, क्वाड्रीवेलेंट एंड बाइवेलेंट। क्वाड्रीवेलेंट में गार्डासिल आता है, इट इज अगेंस्ट द 4 स्ट्रेन्स, एंड सर्वेरिक्स इज अगेंस्ट द 2 स्ट्रेन्स। इसका एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द आइडियल एज इज 11 टू 12 ईयर्स, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज प्रेगनेंसी। ट्रैकिलेक्टमी किसको बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सर्विक्स इज नोन एज द ट्रैकिलेक्टमी। अब हम CIN डिस्कस करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। हमने बेसिकली आज सर्वाइकल कैंसर देखा है। सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल कैंसर इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। हमने ट्रांसफॉर्मेशन जोन की इंपॉर्टेंस देख लिया, हमने कॉजेज देख लिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज द HPV, एंड HPV 16 इज द most sensitive and attacks on ectocervix, and HPV 18 is the most specific and causes adenocarcinoma. रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। आपको इसमें याद रखना क्या है कि मल्टीपैरिटी, स्मोकिंग, OCPs आर द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। ओके, हमने पहले देखा था कि स्मोकिंग एंड OCPs आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर। तो आपने याद रखना है कि स्मोकिंग और OCPs यहाँ पे प्रोटेक्टिव नहीं है, दे आर द रिस्क फैक्टर्स। हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में टू ब्रॉड टाइप्स थे, स्क्वामस सेल कैंसर एंड द एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वामस सेल में 4 टाइप्स हैं और एडिनोकार्सिनोमा हमने देख लिया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लिया है, इसमें एज की इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि यंगर एज में भी कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है और ओल्डर एज में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है, और मोस्ट स्पेसिफिक है पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, दैट इज द अर्लिएस्ट सिम्टम एंड मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। साइंस में क्या है कि बहुत ही फ्राइबल होगी सर्विक्स एंड दैट विल ब्लीड ऑन टच। फिजिकल फाइंडिंग्स में क्या है, हम पर स्पेकुलम करके देखेंगे, अगर सर्विक्स पे ग्रोथ प्रेजेंट है तो पंच बायोप्सी करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने देखा था कि VILI कर सकते हैं और VIA कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट है पैप स्मीयर, इसमें फिक्सेटिव देख लीजिए कौन सा यूज होता है आजकल, लिक्विड मिथेनॉल। साइटो ब्रश के थ्रू करते हैं, स्टार्ट कब करते हैं, खत्म कब करना है, और पैप स्मीयर के रिपोर्ट्स में हमारे पास 5 कंडीशन होती हैं। इसके अलावा रूट ऑफ स्प्रेड क्या है सर्वाइकल कैंसर का, दैट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इज द लिम्फेटिक्स। ओके, इसके 3 रूट हो सकते हैं, लिम्फेटिक्स, हेमाटोजेनस एंड डायरेक्ट एक्सटेंशन। और मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व्ड इज द लंग्स। लंग्स किस तरह से इन्वॉल्व होती है, थ्रू द हेमाटोजेनस स्प्रेड। हमने कॉम्प्लिकेशन देख लिया। कॉम्प्लिकेशन होता है पायोमेट्रा, फिस्टुला, यूरेमिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड पायोनेफ्रोसिस, एंड यूरेमिया कैन लीड टू रीनल फेल्योर एंड डेथ। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सर्वाइकल कैंसर इज द रीनल फेल्योर और यूरेमिया। स्टेजिंग हमने देख लिया है कि स्टेजिंग इसकी क्लिनिकल होती है और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू होती है। हमने HPV वैक्सीन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। आपने एक टर्म सुना होगा CIN, ये क्या होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्विक्स
when a part or the full thickness of stratified squamous epithelium is replaced by dysplastic cell. ओके, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट या फिर पूरा फुल थिकनेस जो स्क्वामस एपिथेलियम है वहां पे डिस्प्लास्टिक सेल हो सकते हैं. बेसिकली इसको हम कंसिडर कर सकते हैं दिस इज द प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. एंड अगर इफ नॉट ट्रीटेड it can convert into neoplasia. अब इसकी स्टेजिंग है. इसकी स्टेजिंग में क्या है? CIN1, CIN2 एंड CIN3. CIN1 में क्या है? अगर लेस देन 1/3 एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड. CIN2 में क्या है? अगर मोर देन और इक्वल टू 1/3 एपिथेलियम थिकनेस के हिसाब से हम कर रहे हैं. इफ मोर देन और इक्वल टू 1/3 एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड बट लेस देन 2/3. और CIN3 में क्या है? लेस मोर देन और इक्वल टू 2/3 एपिथेलियम इज इन्वॉल्व्ड लेकिन होल थिकनेस इन्वॉल्व नहीं है. और अगर होल थिकनेस इन्वॉल्व है तो फिर वो कार्सिनोमा इन सीटू हो जाएगा. इसके अलावा इन्वेसिव कार्सिनोमा अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ब्रोकन एंड डिस्प्लेजिया इन्वॉल्व्स आउट ऑफ एपिथेलियम. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो यहां से एपिथेलियम को वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रोक हो जाएगा और एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लेगा. नेक्स्ट वन इज द बेथेस्डा क्लासिफिकेशन. बेथेस्डा क्लासिफिकेशन जो है वो न्यू वन है. इसमें बस दो पार्ट हैं बेथेस्डा में. लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन एंड हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन. लो स्क्वामस में आता है CIN1 वाला और हाई स्क्वामस में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला. ओके, तो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया क्या है? बेसिकली प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है. अगर इसको ये इसमें क्या होता है कि स्क्वामस एपिथेलियम जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द डिस्प्लास्टिक सेल्स. अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द नियोप्लास्टिक सेल्स. इसके तीन है CIN1, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट में हमने देख लिया अगर 1/3 से कम है. सेकेंड में मोर देन और इक्वल टू 1/3 बट लेस देन 2/3. और CIN3 में मोर देन 2/3 और होल थिकनेस इज इन्वॉल्व तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू. और एक होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा, किसको बोलते हैं? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी ब्रेक हो गया है. बेथेस्डा क्लासिफिकेशन क्या है? न्यू क्लासिफिकेशन है. इसको क्लासिफाई करने के लिए इसमें बस दो होते हैं, लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन एंड हाई स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन. फिर हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, बिनाइन लीजन्स ऑफ द सर्विक्स. बिनाइन लीजन्स में दो आते हैं, नेबोथियन सिस्ट एंड द एंडोसर्वाइकल पॉलिप. नेबोथियन सिस्ट क्या होती है? नेबोथियन सिस्ट इज द इंक्लूजन सिस्ट, आल्सो नोन एज द इंक्लूजन सिस्ट. एंड टाइप ऑफ सिस्ट कौन सी है? दिस इज द रिटेंशन सिस्ट ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड. क्या होता है बेसिकली? बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन और ट्रॉमा और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्वाइकल ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये ब्लॉक हो जाता है और इसके सिक्रीशंस यहाँ पे पाइल अप कर जाते हैं. तो इससे बन जाता है हमारा नेबोथियन और इंक्लूजन सिस्ट. बेस ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल ऑस पे. कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन द एक्सटर्नल ऑस. एंड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा लार्ज सिस्ट हो गई है तो फिर व्हाट वी कैन